अनघराज पेरेंट्स, स्केटिंग के लिए उसे प्राइज मिला है। Have a big round of applause for Anagraj. Thank you everyone. Akshaya Maske, please come on the stage from standard 6th. She got silver medal in kata and bronze medal in kumite from Okiwana Martial Arts Academy 27th National Championship of Skating held at Pune. Really a very proud moment for us. Be clapping continuously, hands should not wait. Next, Anaya Shrikant Award from standard 4th. She stood third in Apple Pama Global Abacus and Arithmetic competition. This exam was conducted at Vietnam, so it's really a big deal, and out of 24 countries, she got the third prize. Really a very proud moment for us. Have a big round of applause. Vakaya Anvi got IGKO gold medal, IMO gold medal, IEO gold medal, NSO silver medal, Hindi Olympiad gold medal, and Manthan trophy. Oh my God, so many medals. Really a proud moment for us. Akshaya and Kaustubh Bajpayee, they got gold medal in Kumte held at Pune, organized by Bino Ruya Karate Association. Both of them at National Level Academy. Congratulations students. Trophy is bigger than them. Really. One more child is there, Prathamesh Amar Zawar. In 11th standard he is there. He has selected under 19th in Maharashtra Cricket Team Association. So it is also a very big moment for us. And Rutuparna Gaikwad, he have got International Abacus Olympiad exam. He have done 300 out of 300 marks, and it was recorded in Guinness Book of World. Then Savitribai Phule Pradnya Shot exam, he got 272 marks out of 300, got first prize in district. Then national level abacus championship competition he have awarded by champion of champion. In Uttar Pradesh, Orient Book of World Record get awarded in 2024. Global Education and Media Foundation have given him the Icon of India 2024. And again he have selected for Icon Awards 2025 by Rajasthan quota. So really very proud moment of the child, of the school and parents. Thank you. Sanskruti Dhole from standard 10, she is here. Sir, ma'am, I request you to please felicitate her. She have got the black Den Japan Karate Shoot Call, black belt. She have got the black belt. Okana Martial Arts organized 27 National Karate Championship held at Pune, and gold medal in Kumte and bronze medal in Kata event. Sanskruti, have a big round of applause. Parents, please come ahead. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Yogesh, sir. Now I would like to call Honorable our Sanjot ma'am to come ahead and express their feelings, their views towards this program. Ma'am, please. हॅलो. ही जी अवॉर्ड्स आत्ता दिले गेलेत ते फक्त नॅशनल, इंटरनॅशनल लेवल किंवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काही केलेल्या मुलांना दिलेत. DSOमध्ये असे अनेक अवॉर्ड्स मुलांनी मिळाले डिस्ट्रिक्ट लेवलला किंवा ह्या त्यांना आम्ही जर केलं असतं तर आजचा प्रोग्राम त्यातच संपला असता. त्यामुळे एक्सक्लुझिव्ह काही मुलांना सिलेक्शन केलं आहे. सो सन्माननीय व्यासपीठ, आज
या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले एक खूप महान व्यक्तिमत्व, कारण त्यांचं स्पीच सुरू झाल्यानंतर तुम्हाला त्यांच्या महानतेची प्रचिती येणार आहे, हाउ ग्रेट ही इज़. सो इसका परिचय उनके स्पीच में हो जाने वाला है. सो ये है मनोज लेखी सर. ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ पेरेंटिंग कोच, लाइफ कोच, एंड सबसे उनकी जो पहचान है कि वो SSY के सीनियर टीचर्स है. श्री श्री ऋषि प्रभाकर जी जब थे देह में, तब उनके वो बहुत क्लोज शिष्य थे और उन्होंने उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दी. तो ऐसे जो विभूति आज हमारे बीच उपस्थित है, डेस्टिनी प्लानर के योगेश बाहेती सर हमारे बीच उपस्थित है. मनोज लेखी सर की पूरी टीम जो कई जगह से आई हुई है, कोई गुजरात से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से, मुंबई से, कोई औरंगाबाद से, कोई और कई जगह से ये लोग आए हैं. तो ये सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इन सबका मैं स्वागत करती हूँ. काफ़ी सारे उनके साथ जो आए हुए लोग हैं शायद मराठी नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में स्विच हो गई हूँ. और हमारा प्रोग्राम भी हिंदी और इंग्लिश ऐसे दोनों लैंग्वेज में ही चलेगा, राइट. सुजान पालकत्वाची कला किंवा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, ये मैं क्यों ले रही हूँ या इसकी ज़रूरत क्या पड़ी. एक जो इंसिडेंस था या दो इंसिडेंट्स हम बोल सकते हैं कि जो में आप मुझे आर्ग्यू नहीं करते हो. देन ही टोल्ड मी कि मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में मैं बात करना चाहता हूँ. मैं बोली ठीक है, हम बात करते हैं. फिर उसने जो बात मुझे बताई थी, उस बात ने मुझे लिटरली झंझोड़ के रख दिया है. और इसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, या उसकी जो नींव है, जो सीडिंग हुआ, वो उस टाइम से हुआ था. उसने मुझे जो बताया, तो उसने मुझे बोला कि मेरे दोनों भी पेरेंट्स वर्किंग है. तो मैं बोली बोली वर्किंग है तो तुम तो जल्दी आना चाहिए. बोला नहीं मैम, जब मेरे पेरेंट्स हैं ना वो घर में रहते हैं, तो मैं मेरी मम्मी को मेरे पापा के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ. मैं बोली क्यों? बोले वो किसी भी बात पे गुस्सा हो जाते हैं और उनको गुस्सा होने के लिए ये नहीं लगता, रीज़न की ज़रूरत नहीं है. वो जैसे गुस्सा होते हैं मेरे मम्मी को मारना शुरू कर देते हैं. जब तक मैं घर में रहूँगा वो मेरी मम्मी को हाथ तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो मुझे मालूम है मैं मेरी मम्मी का प्रोटेक्शन करूँगा, मैं बीच में आ जाऊँगा. लेकिन अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो बिंदास्त मारेंगे. और कई बार मेरे मम्मी ने मार खाया है. तो इसलिए जब मेरे पापा घर से निकल जाते हैं तब मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ. भले मुझे देर हो जाए, भले मुझे पनिशमेंट मिल जाए, लेकिन मैं मेरी मम्मी को अकेले छोड़ के नहीं आ सकता हूँ. आई वॉज सो सरप्राइज एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन कि अरे एक बच्चा कि जो अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए घर में रुक रहा है, हाउ मीन्स लाइक इन विच फेज ही इज़ गोइंग, उसको क्या लगता होगा या कौन सी मानसिक परेशानी से वो गुजरता होगा. उसके बाद मैंने उसको कभी पनिशमेंट नहीं दी. वो जब भी आए, कभी भी आए, दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहते थे, क्योंकि दैट चाइल्ड वॉज प्रोटेक्टिंग हिज मदर. और जब मैंने ये सुना तो मनोज जी है ना, मनोज जी के साथ कि मैंने इनको क्यों बुलाया. और एक इंसिडेंस हुआ था, दूसरा एक था कि एक बच्चा था, वो स्कूल में आने के लिए तैयारी नहीं था, रोता था. स्कूल का नाम सुनते ही बस आई तो रोना स्टार्ट हो गया. तो उसके जो पेरेंट्स से बड़े परेशान हो गए कि बोले स्कूल का नाम सुनते ही बच्चा रोना शुरू कर देता है. तो मैंने बोला उसका शेड्यूल बताओ. बोले कुछ नहीं, स्कूल में वो आता है 3 बजे, घर आता है 4 बजे, 4:30 बजे कुछ खा के हम उसको ट्यूशन के लिए छोड़ के आते हैं. 4:30 से लेके 6:30 बजे तक वो ट्यूशन में रहता है. फिर घर में जाने के बाद थोड़ा सा होमवर्क करता है और उसके बाद सो जाता है. तो मैं बोली उसको फिर क्या पसंद है? बोले वो बहुत बोलता रहता है कि मुझे ना क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है. मैं बोली फिर आप उसको क्रिकेट के लिए क्यों नहीं भेजते? बोले नहीं, फिर क्रिकेट में वो जाएगा, फिर पढ़ाई में उसको नंबर नहीं आएंगे, फिर उसका ये होगा. मैं बोली ट्यूशन जाके भी उसको कहाँ मार्क्स मिल रहे, क्योंकि वो पीरियडिक टेस्ट में लिटरली उसको 17 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए थे और वो बहुत परेशान थे. इसलिए उन्होंने और ट्यूशन का टाइम बढ़ा दिया था उसका. मैंने उसको बोला एक खाली बात मेरी मान लीजिए, आप ना आज से उसको ट्यूशन जाना बंद करवा दीजिए, उसकी जगह ना आप उसको क्रिकेट ग्राउंड लेके जाए, स्टेडियम. बोले मैम क्या बात कर रहे, 2-2 घंटे क्रिकेट. मैं बोली करो ना, एक बार करके देखो.
उसके बाद जो पीरियडिक टेस्ट हुई, अभी जो रिसेंट हुई थी, दे बोथ केम इन माई केबिन। उन्होंने बोला मैडम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये सजेशन दिया। एक्चुअली वो कुछ महान सजेशन तो मैंने दिया नहीं था, मैंने बस उसका बोला था कि उसके मन में जो चल रहा है ना वो करो, और आपके मन में जो चल रहा है ना वो मत करो। मैं बोली ट्यूशन के लिए क्यों भेज रहे? बोले नहीं फिर मार्क्स कम आएंगे। मैं बोली मार्क्स किसके लिए है? फिर मेरे फ्रेंड्स के जो लड़के हैं ना उनको बहुत ज़्यादा, तो हमारी कंपटीशन हमारे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहती है। मैंने उनको बोला ही इज़ गोइंग फॉर क्रिकेट, और पीरियडिक टेस्ट में उसको आउट ऑफ 32 मार्क्स मिले विदाउट एनी ट्यूशन। तो मुझे लगता है कहीं ना बच्चे का दोष नहीं है। तो मैं जब मनोज सर से मिली थी रिसेंट, मैंने उनका लिव लाइफ किंग साइज़ ये प्रोग्राम किया, और मैंने उनको बोला कि सर मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं, स्ट्रॉबेरी के बच्चे में देखूँ या कोई भी बच्चा बहुत डिप्रेशन में है, तो हम बच्चों के लिए ऐसा क्या करें? क्योंकि मैं एक स्कूल ओनर हूँ और मैं ये देख नहीं सकती हूँ कि भाई ये बच्चे किस हालत से गुजर रहे। मैं मीन्स लाइक आई एम नॉट सेइंग प्राउडली, लेकिन मैंने ना मेरे एक स्कूल में एक चीज़ शुरू की है कि हमारी ज़रूरतें क्या है। हम अगर पूछेंगे ना तो अन्न वस्त्र निवारा ये हमारी ज़रूरत आज बची नहीं है, हर एक के पास ये है, ऐसा कोई नहीं, अभी स्टोन एज में नहीं रह रहे हम। हमारी ज़रूरत है प्यार, हमारी ज़रूरत है हैप्पीनेस, ये हमारी ज़रूरत बन गई। हम जो भी कुछ करते हैं ना हैप्पीनेस के लिए करते हैं, प्यार के लिए करते हैं, और हमारी ज़रूरत है शांति। तो मैंने मेरे स्कूल में एक बात शुरू की है कि मैं कॉरिडोर में खड़ी रहती हूँ, मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं ना वो आके मुझे हग करते हैं। एवरी चाइल्ड व्हेनेवर दे मीट मी दे कम एंड हग मी, व्हेनेवर दे कम एंड मीट मी एंड हग मी। जितना टाइटली वो मुझे हग करते हैं ना उससे मुझे मालूम चलता है इस बच्चे को प्यार की कितनी ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि उनको पढ़ाई की भी ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है, इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने एक बार मनोज जी से पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि मैं मेरे बच्चों के लिए क्या करूं ताकि वो खुश रह जाए, हमेशा खुश रहे, ऑलवेज खुश रहे। तो फिर मनोज जी ने मुझे बताया कि मैम बच्चों के ऊपर काम करके कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें अगर काम करना है तो हमें रूट कॉज क्या है ना उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम बच्चों के ऊपर काम करके कोई भी इफ़ेक्ट जो है या ये नहीं हासिल कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट्स का कोई सेशन लेंगे, और इसलिए आज का जो प्रोग्राम है आई थिंक वो उस वजह से है कि अगर हम आप लोगों पे क्या काम कर सके, अगर हमें पता चले कि हमारा बच्चा हमारे लिए क्या सोचता है। मनोज जी अभी 12:30 बजे स्कूल में आए थे और उन्होंने बच्चों को पूछा कि आपको आपके पेरेंट्स को क्या बताना है, क्या बोलना है, क्या मैसेज देना है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। कुछ बच्चों ने बोला बहुत ऐसे देयर एक्शन वाज, कुछ बच्चों ने बोला कि पेरेंट्स बोलते बाहर खेलने मत जा, घर में खेल क्या खेलना है, हम उनको खेलने भी नहीं देते, जो करना है यहाँ पे कर। बाकी बोलेंगे अगर तू खेलती रही तो फिर तेरा करियर नहीं बनेगा, तेरा फ्यूचर नहीं बनेगा, तू फ्यूचर में फेल हो जाएगी। हमारे पेरेंट्स ऐसी बात करते हैं। और मुझे यहाँ पे बोलने में बड़ी खुशी हो रही कि जो हमारा एक बच्चा है प्रथमेश शिल्पा अमर झवर, मुझे नहीं लगता एक दिन भी उसने क्रिकेट खेलना छोड़ा है। इवन दो ही वॉज इन 10th, लास्ट ईयर वो 10th में था, 1 महीने के लिए उसको बाहर जाना था। आई थिंक ही वेंट टू लखनऊ, 1 महीने के लिए लखनऊ गया था। 10th में होने के बावजूद शिल्पा ने मुझे पूछा मैडम कैसे भेजे उसको, मैं बोले भेज दे बिंदास, उसका कोई भी ये नहीं करेंगे अपन, जी उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, तो उसको भेज दे, उसको खेलने दे। अरे कितने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है क्रिकेट खेलने की। बिंदास हमने प्रथमेश को भेज दिया। यू डोंट बिलीव, प्रथमेश शिल्पा अमर झवर को 10th में 94% मार्क्स है। क्या लॉस हुआ उस बच्चे का? 1 महीने तो वो स्कूल में था नहीं, हमने एडजस्ट कर ली उसकी अटेंडेंस, जो उसका मिस हो गया हमने दे दिया उसको सब कुछ। जब हम उनको खेलने देंगे ना तब उनकी जो निगेटिविटी है ना, जो ब्लॉकेज हम बिठा के रखते, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर, वो ब्लॉकेज है ना वो हट जाते खेलने से। और अनफॉर्चुनेटली हमें यही नहीं मालूम, फिनलैंड आज वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है एजुकेशन में। वहाँ के बच्चे ना सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं। हर एक पीरियड के बाद उनको खेलने के लिए छोड़ा जाता है, और एवरी 45 मिनट्स के बाद 15 मिनट का ब्रेक है खेलने के लिए। और उनके बच्चे स्कूल में 1 घंटा पहले आते हैं, 1 घंटा खेलते हैं, बाद में उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। और हमारे बच्चे कितना खेलते हैं दिन भर में? स्कूल हुआ नहीं 6 घंटे का, ट्यूशन 2 घंटे की,
बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलता, टच नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, नो हैप्पीनेस, नथिंग। अनफॉर्चुनेटली हम कौन से युग में रह रहे हैं और हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं मुझे यही पता नहीं है। तो आई थिंक मनोज सर कैन गाइड यू मोर बेटर, और आप उनसे सुनेंगे। और मैं दीपेश जी से विनती करती हूँ कि आप मनोज जी का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसे मैंने बताया है, अगर आप उनकी वाणी सुनेंगे ना, मेरे बच्चों के साथ उन्होंने बस एक 7 मिनट का मेडिटेशन लिया आज। वैसे मैं मेडिटेशन लेती हूँ उनका रोज़, लेकिन आज मनोज सर ने जो मेडिटेशन लिया ना, दे वेर इन द पिन ड्रॉप साइलेंस। कुछ बच्चे बोले हम थॉटलेस हो गए थे, 6, 7, 8 के ही बच्चे, लेकिन उनको वो थॉटलेसनेस पता चल गई, या उनको वो रिलैक्सेशन क्या है या पीस ऑफ माइंड क्या है। बच्चों के ये वर्ड्स थे, वी आर फीलिंग सो मच ऑफ पीस इन आवर माइंड और रिलैक्सेशन। तो मुझे लगता है इट्स अ राइट टाइम। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, अभी भी उनके ऊपर काम कर सकते हैं। कहाँ गलती हुई वो रियलायझेशन अगर हो जाए ना, तो ट्रान्सफॉर्मेशन एक दिन में हो जाता है। वाल्याचा वाल्मिकी बनायला वेळ नाही लागला, फक्त कोणीतरी नारद मुनी तिथं भेटला पाहिजे। आणि मला असं वाटतं, असं म्हणू नये, पण मनोज सर हे काम नक्की अगदी आत्मीयतेने आणि खूप मनापासून करतील। आणि आय वुड लाईक टू आस्क दीपेश जी टू इंट्रोड्यूस मनोज सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा और जोर से। और जैसे संजोत जी ने बताया तो मेरा नाम 2 लाइन में मेरा इंट्रोडक्शन भी मैं देता हूँ। दीपेश सूर्यवंशी मेरा नाम है और मैं खुद बिजनेस में हूँ, फूड इंडस्ट्री में कंसल्टेंट हूँ और पिछले 15 साल से मनोज जी के साथ हूँ। आज हमारे साथ काफ़ी हमारे टीम मेंबर भी है, आपको दिखेंगे। तो आज का हमारा ड्रेस कोड भी ये ब्लू जीन्स एंड वाइट है, तो जहाँ पर भी ब्लू वाले वाइट वाले दिखे समझ जाओ हमारे टीम मेंबर है। और तो 15 साल से क्यों हूँ, तो संजोत जी ने अभी एक लाइन बताई, वाल्याचा वाल्मीकि झाला। ये सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, तो वो वाल्या और कोई नहीं था, मैं ही था 15 साल पहले। ओके, तो वाल्याचा वाल्मीकि झाला, वो मेरा जीवन में इतनी खुशी मिली है, और सिर्फ खुशी नहीं, बहुत कुछ मिला है, पैसा, रिश्ते, बहुत कुछ मिला है। और वो जो खुशी है वो बांटने के लिए मैं और हमारी पूरी टीम और इंक्लूडिंग मनोज जी आपके साथ आज यहाँ पे है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं उस खुशी का अनुभव लेने के लिए? आवाज जोर से आएगा तो आवाज आएगा, यस। मजा नहीं आया? यस। पीछे से यस। ओके, तो हाँ, ओके, पीछे आवाज आ रहा है क्लियरली? पीछे टीचर्स क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं अगले, क्योंकि अभी समय आगे बढ़ रहा है तो हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक चीज की जरूरत है। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो 15 मिनट बाद क्या हो जाएगा? आप सिर्फ बैठ के सुनेंगे तो 15 मिनट बाद क्या हो जाएगा? हाँ, खुर्र, सो जाएंगे। यस और नो? तो सोने आए हैं? नहीं, हम भी यहां सोने नहीं आए हैं। तो हम क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? बात करने आए हैं और सीरियस होने आए हैं। हाँ, वेरी गुड, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार जोरदार। हाँ, तो हम यहां क्यों आए हैं? सीखने आए हैं, लेकिन सीखने को भी सीरियस नहीं बनाना है, थोड़ा मस्ती करना है। तो थोड़ा खेल खेलेंगे। ओके, तैयार है खेल खेलने के लिए? डर गए क्या? नहीं ना, अभी खेल के बारे में तो बात किया, तो खेल खेलने के लिए तैयार? जोर से तैयार? ओके, खेल बहुत सिंपल है। ओके, आपको क्या करना है, जो भी मैं कर रहा हूं आपको मेरे पीछे कॉपी करना है। करेंगे? रेडी? तो सब लोग खाना खा के आए या नहीं खा के आए? खा के आए हैं। अभी नाश्ते का टाइम है तो थोड़ा नाश्ता करते हैं, ठीक है? लेकिन एक्चुअल नाश्ता नहीं, थोड़ा खेल खेल का नाश्ता। ओके, तो मेरे साथ करिए। रेडी? 1 2 3, ऐसा करिए। इडली बोलो, बोलना भी है। इडली, वड़ा, चाय, डोसा। हाँ, समझ गए अभी? लेकिन आवाज चाहिए, एक्शन भी करना है, पीछे वाले स्पेशली टीचर्स भी, एक्शन भी और शब्द भी बोलना है। रेडी? हाँ हाँ हाँ, तो आप मेरे हाथ की तरफ देखिए, मेरे एक्शन,
और शब्द आप कान से सुनिए। इडली, सब लोग नहीं कर रहे, ये कौन सा इडली है? इडली ऐसा है, हाँ, इडली, वड़ा, चाय, डोसा। एक बार और, इडली, डोसा, डोसा ये है नहीं, चलो इडली, डोसा, चाय, वड़ा, चाय, इडली, डोसा, डोसा, बोल गए? ओके, चलो लास्ट राउंड। ओके, रेडी? इडली, डोसा, चाय, वड़ा, इडली, डोसा, चाय, चाय। तालियां तालियां खुद के लिए, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियों के साथ मनोज जी का स्वागत करते हैं। थोड़े जोश के साथ जोरदार तालियां हो जाए। Thank you, Sanjotma. Thank you, Sarji. Thank you, all of you, to invite us here. Thank you to the whole team and the whole staff. मैं आपके स्कूल पे गए थे हम दोपहर को। बहुत 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 प्यारे बच्चे, और कितने थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन 100 के करीब होंगे, और उनका एक क्लास लिया था। कुछ लोग शायद इधर भी होंगे। Any of the children were there in the morning? Can you just raise? Okay, can you just stand up? Wonderful, wonderful, और beautiful. हाँ, जो लोग आज सुबह थे, ओके, जब हम मिले थे, वेरी नाइस, सरप्राइज दे दिया मुझे। ओके, so would you like to share? You did the meditation. Would you like to come and share one line here? Quickly. Come. हाँ, आ जाओ. While doing meditation, I was feeling too peaceful and my mind got thoughtless. It was too happy for me to do the meditation. Also, it was too nice and I was feeling too fantastic. Thank you. It feels so relaxed. All the stress throughout the day was gone, and thank you, sir, for the great meditation. बहुत अच्छा। When I was meditating, I was feeling very peaceful and relaxed. Till the time I was meditating, the thought I was first thinking, I just remember that, and afterwards, after meditating, I recall that I think that the thoughts were finished. Thank you, sir. तुला कसं वाटतं सांग मेडिटेशन? छान वाटतं. छान वाटतं. मला फर्स्ट स्टँडर्डची मुलं मी कधी कॉरिडॉरमध्ये भेटली की आवर्जून, टीचर आर यू गोइंग टू टेक मेडिटेशन? म्हणजे त्यांना ती खूप एक्साइटमेंट आहे. येस, थैंक यू सर मेडिटेशन लेने के लिए। मुझे मेडिटेशन के बाद ऐसा लगा कि पूरे दिन का मेरा स्ट्रेस चला गया है और मैं यूनिवर्स के साथ जुड़ गया हूँ। थैंक यू सर फॉर टेकिंग मेडिटेशन। I'll take. First of all, I thank you, sir, for taking the meditation. Hello. At the whole day, I have got stress, and I lose it, and I feel very good. Thank you, sir. Thank you. कितने लोग के पास 0 to 6 नंबर के बच्चे हैं, यानी कि 6 साल के अंदर? गुड। अभी 7 से 12, ओके, 13 से 18, ऑल राइट, और 19 से 24। ओके, बहुत अच्छा। सो ये पहले हम कार्य करेंगे। ओके, ये जो इधर लिखा है अलार्म, आपका मोबाइल ज़रा निकाल के दीजिए, दिखाइए, मोबाइल निकाल के दिखाइए। हाँ, सब लोग मोबाइल। हाँ, अभी ये आप 1 मिनट लीजिए और ये सब टाइमिंग का आप अलार्म लगाइए। आज नहीं, रोज का। तो इधर से जाएंगे आप, तो आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, ये मैं लेक्चर देने के लिए नहीं आया। ओके, हम आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए आए हैं। हमारे वॉलंटियर्स हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। 1 मिनट का समय
आप ये सब अलार्म डालो अपने फ़ोन में, आज नहीं, आज और कल और परसों और तरसों, इस तरह से 1 मिनट का समय। फोटो ले सकते हैं, लेकिन 1.5 तास में, सुबह 8 बजे, 9:30, 11, 12:30, तो इस तरह से रोज करेंगे। और 6:30 बजे अलार्म बजेगा तो क्या करना है वो बताएंगे आपको। तो मोबाइल निकालिए, शुरू कीजिए, 1 मिनट का टाइम। सध्या प्रत्येकाने 1.5 तासाचं 8 वाजता सुरू करून रात्री 11 वाजेपर्यंतचे 1.5 तासाचे अलार्म सेट करून घ्यायचे। आता ॲटलिस्ट 6:30चा अलार्म आता सेट करा, बिकॉज तो आपण सोबत करणार, प्रत्येकाचा अलार्म जो आहे तो वाजायला हवा 6:30। 30 सेकंड और। ओके, प्रश्न ये, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं। ओके, पहला जो प्रश्न है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के बारे में, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मम्मीज, डैडीज, अगर आपके बच्चे बात कर रहे हैं तो उनको शांत करो, और बहुत बात कर रहे हैं तो बाहर बैठ के वो खेल सकते हैं, लेकिन इधर थोड़ा 1 घंटा शांति, शांति यानी कि पार्टिसिपेशन। ओके, सो द वॉलंटियर्स कैन हेल्प इन दिस, टीचर्स आल्सो कैन हेल्प। प्रश्न, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के बारे में, यस या नो? हाँ, क्या आपके बच्चे बहुत से टीवी देखते हैं? अगर हाँ तो मतलब ये एक समस्या हो सकता है। हाथ 90 डिग्रीज यानी कि हाथ ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज, क्या आप अपने बच्चों से परेशान होते हैं? नहीं सुनते यार। ओके, नेक्स्ट कि क्या आपके बच्चे इरिटेट होते हैं या गुस्सा आता है उनको? ओके, नेक्स्ट, आप बच्चों के बारे में, उनका एजुकेशन के बारे में टेंशन आती है? डबल हाथ कर सकते हैं। और क्या आपके बच्चे के बारे में वो खाना अच्छी तरह से नहीं खाते हैं, आपके मुताबिक नहीं खाते हैं? ओके, चिड़चिड़ापन, मतलब एक जगह में बैठ नहीं सकते, फिरते हैं, आज भी होगा, चंचल है, हमेशा आपका अटेंशन चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट, पेप्सी, कोको कोला, कुरकुरे, वेफर्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, उनको बहुत पसंद है, लेकिन आपको देना नहीं चाहते, लेकिन खाना चाहते हैं वो। राइट, राइट। मोबाइल्स के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, और दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा करते होंगे थोड़ा बहुत। डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन करना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं होते हैं। राइट, कभी गालियां देते, अशुभ बात करते हैं, और बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ लोगों के साथ शेयरिंग नहीं करते हैं। अभी हर 1.5 घंटे में आपका अलार्म बजेगा, 6:30 बजे बजेगा, तो क्या करने वाले हैं? तो आपको क्या करना है? वेरी सिंपल। ओके, जब बजेगा आप अपना हाथ ऐसा रखेंगे, ओके, और मेरे पीछे पीछे वो बताएंगे। ओके, तो हाथ रखिए अभी, पिछला 1.5 घंटा, आप मेरे पीछे पीछे बताओ, मेरा पिछला 1.5 घंटा सबसे बेहतरीन 1.5 घंटा था। मेरा पिछला 1.5 घंटा सबसे बेहतरीन 1.5 घंटा था। मेरे मुताबिक जो भी हुआ
उसके लिए धन्यवाद। मेरे मुताबिक जो नहीं हुआ उसके लिए और भी धन्यवाद। ओके, तो मेरे सब मान लो, ओके, आपके बच्चे आपको तकलीफ दे रहे हैं, ओके, तो पिछले 1.5 घंटे में मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे बच्चे मुझे तकलीफ दिया, कुरकुरे खाए, आइसक्रीम खाया, मेरी बात नहीं सुने, टीवी देखे, उसके लिए और भी धन्यवाद। लड़ाई किए, उसके लिए धन्यवाद। और पढ़ाई नहीं किए, उसके लिए धन्यवाद। खाना अच्छी तरह से नहीं खाए, उसके लिए धन्यवाद। चिड़चिड़ापन है, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल एकाग्रता नहीं था, और भी धन्यवाद। कोका कोला पिया, और भी धन्यवाद। मोबाइल के साथ लगे रहे, धन्यवाद। यही करना है। घबरा गए? और ये एक मिनट खड़े हो जाए। हाँ, अभी ये एक हो गया, फिर अगला 1.5 घंटा मेरा सबसे बेहतरीन 1.5 घंटा है। मैं 100% आनंद ले रहा हूं। यही हर 1.5 घंटे को करना है। और ये नहीं कि बच्चों ने नहीं सुना, कभी कभी झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ का, माता पिता का, उसके लिए धन्यवाद। कभी सास ससुर से साथ अनबन हो जाती है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी आपके मुताबिक नहीं हो रहा है उसके लिए धन्यवाद करना है। सब लोग आकर मुझे मारेंगे लेकिन क्यों करना है समझाते हैं। ओके, अभी नहीं, 6:30 बजे। ओके, सो इतना ध्यान रखो। इसका एक वीडियो भी है, सब कुछ आपको देने वाले हैं। हर चीज जो मैं बताने वाला हूं उसका वीडियो मिलेगा। तो आज अगर समझ भी नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो मिल जाएगा आपको। ओके, सो बैठ जाएंगे। अभी इसका हम उदाहरण करते हैं। ओके मैं आपको प्रश्न पूछने वाला हूं कि कितने लोगों का शादी हो गया? राइट। दूसरा प्रश्न, कितने लोग के पास बच्चे हैं? राइट। अभी बच्चे हमारे जीवन में क्यों आते हैं, ये मेरा प्रश्न है। बच्चे हमारे जीवन में क्यों आते हैं? 30 सेकंड के लिए जो आपके आजू बाजू बैठे हैं ना, उनसे शेयर कीजिए कि बच्चे आपको लगता है क्यों पैदा होते हैं, क्यों हमारे जीवन में आते हैं। ये आप एक दूसरे को पूछिए। ओके, अभी बताओ क्यों देते हैं? चलो, कुछ बोलते हैं मेरे लिए ब्लेसिंग है, ठीक है, मानता हूं। ओके, और क्या? पिछले जन्म का कुछ तो हिस्सा है बहुत अच्छा। मेरे लिए लाइफ चेंज हो गया। हाँ, हमारे जीवन में बच्चे क्यों आते हैं? अपने खुशी लाने के लिए आते हैं। ओके, और भगवान ने भेजा है तो मिल गया, एक दिन हो गया या एक रात को हो गया। ओके, ऑल राइट। और क्या? गॉड गिफ्ट है। ओके, भगवान का गिफ्ट है। और क्या? यस, एनीवन एल्स? हाँ, खुशियां लाते हैं मानता हूं। अभी दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया कि बच्चे आते हैं, खुशियां लाते हैं, बहुत खुश हो गया, जीवन बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। जब बच्चा छोटा था यही अनुभव शायद सभी लोग को हुआ होगा। यस और नो? सब मम्मी या डैडियों को
ये अनुभव किया मेरा दुनिया का बेस्ट दिन जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ, मोस्ट 99% ऐसा होगा। यस, पूरा हाथ ऊपर करो 90 डिग्रीज अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं करो। ओके, अभी बच्चा हम जीवन में खुशियां लाई है, ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके लिए बच्चे जिंदगी में नहीं आते हैं, खुशियां लाते हैं जरूर, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा बच्चा पैदा किया और वो बड़ा होगा 1 साल 2 साल, तो हम उसको क्या करने लगते हैं? हाँ, राइट। सो आपने सही बोला, हमारी मर्जी के ऊपर हम थोपते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको क्या करना चाहते हैं हम? यस, कंट्रोल तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी, लेकिन हम उनको बेसिकली सिखाना चाहते हैं कि बेटा ऐसा खाओ, ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, खाना ऐसा खाते, ये दुनिया भर का इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर जमा है, हम उनको डालना शुरू करते हैं। यस या नो? जोर से। और हम उसको सिखाना चाहते हैं। यस और नो? आपका इंटेंशन सही है, इंटेंशन प्योर है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इंटेंशन खराब है, इंटेंशन परफेक्ट है, लेकिन बच्चे इधर हमारी जिंदगी में आते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसको सिखाएं। यस और नो? जोर से यस यस बोलो या नो बोलो, कोई बात नहीं। यस, तो बच्चे हमारे जीवन में आते हैं, हम उनको सिखाए, ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्यों आते हैं बच्चे हमारे जीवन में? आते हैं क्यों? क्योंकि हमको सिखाने के लिए आते हैं, हमको सिखाने के लिए हमारे जीवन में बच्चे आते हैं। कुछ ही तालियां आई लेकिन बाहर लोग घबरा गए, अरे जरूरी नहीं, लेकिन हमारे जीवन में बच्चे क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हमको सिखाने के लिए आते हैं। क्या सिखाना? इसलिए हमने एक किताब लिखा है, किताब लिखा है आपका बच्चा आपका गुरु। इसका मतलब क्या है? ओके, हमको सिखाने आए हैं। क्या सिखाने आए हैं? वो बच्चों पूछो, क्या सिखाने आए बताओ? हाँ, पहचान, पेशेंस। अच्छा, ओके ओके, और क्या सिखाने आए हैं? अच्छा है, पेशेंस। और क्या? मैं वादा से बोलता हूं, बच्चे हम पैदा करते हैं, पैदा नहीं करते, पैदा हो जाते हैं अक्सर। और जब होते हैं तो हमारे जीवन में हम सिखाना चाहते हैं उनको, इंटेंशन सही है, लेकिन उसके कारण नहीं आते हैं। सिखाना नहीं, वो सिखा रहे हैं। क्या बताओ? जो एक गाना गाते हैं, ओके, उसमें आपको मैं पूछूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या सिखाने आए हैं। ओके, तो मैं एक लाइन गाऊंगा और आप उसका रिपीटिशन करेंगे। ओके, बीज का कहानी है। बीज मतलब कोई भी फल का बीज है, आम का फल, आम का बीज समझो। ओके, एक छोटा बीज जमीन के अंदर था, आंख बंद करके वो सोया रहता था। अभी मैंने इमिटेशन कर रहा हूं, मैंने गाया एक छोटा बीज जमीन के अंदर था। आपने पीछे लोग, मैं क्यों गाऊं? हंस रहे। अरे तू गा ना, मैं क्यों गाऊं? फिर कुछ लोग बेटर थे, एक छोटा बीज जमीन के अंदर था। कुछ लोग उससे भी अच्छा, एक छोटा बीज जमीन के अंदर था। जमीन किधर है जरा बताइए? हाँ, लेकिन वो देखे, एक छोटा बीज
जमीन के अंदर था। अभी बोल रहे लेकिन कुछ नहीं। आपको मालूम है बच्चे लोग क्या सिखाने आए हैं? अभी आइडिया आ रहा है क्या? क्या? चलो। एक छोटा बीज जमीन के अंदर था, फिर भी आंख बंद करके वो सोया रहता था। Volunteers, you have to be very alert. Huh? I don't know where. I can't see the Claire. I can't see Bijal. I can't see anyone standing. I can't see Mehul. I can't see someone there in middle. So you have to watch. They are doing or no. Okay. अभी आप देखो. मैंने गाया आंख बंद करके वो सोया रहता था. अभी आपने क्या किया? आंख बंद करके वो देखो आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं है. मनसा वाचा काया है ही नहीं. तो हम बोलते हैं बच्चों से, हम बच्चे स्कूल से आए क्या सीखा? अरे वही सीखा जो आपने सिखाया. मनसा वाचा काया नहीं करने आया, यही कर रहे हैं. जो मम्मी डैडी है वही बच्चे उसका रूप है. और मम्मी डैडी अगर नहीं पार्टिसिपेशन करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे. वो मार्क्स आया, ये क्यों नहीं आया? अरे पहले आप अपने आप को तो देखो. राइट और नो? अभी वापस से एक छोटा बीज जमीन के अंदर था. वेरी गुड. हाँ, जमीन नीचे, आंख बंद करके वो सोया रहता था. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अभी आप अच्छी तरह से एक्टिंग करें. मनसा वाचा काया, सोच रहे हैं, बोल रहे, कर रहे हो, एक ही होना है. तब आपके बच्चे आपको इसको बोलते हैं सत्य. सत्य का मतलब मनसा वाचा काया. आप सत्य में रहेंगे तो बच्चे सत्य में आ जाएंगे. आज नहीं तो कल. तो नेक्स्ट, टुपुर टुपुर बारिश भी. चेक कर रहे हैं अभी हमारा एक्टिंग. हाँ चेक करो, शायद हो रहा है. ओके ओके. सरकते 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 वो सरकते चला गया. एक सौ में आया सूरज ने प्रकाश डाला. प्रकाश के किरणें बोली बहुत सो लिया. ऊपर देखो. बीज ने ली अंगड़ाई फिर उठ गया. बीज ने ली अंगड़ाई फिर उठ गया. फिर उठ गया. ये चलते जाएगा जब तक आप उठेंगे नहीं. अरे बीज ने ली अंगड़ाई फिर भी उठ गया. वो बैठे रहते, हाँ उठ गया. तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? मनसा वाचा काया. फिर वो उठ गया. इधर उधर देखते वो नाचने लगा. हाँ हाँ नाचने लगा. हाँ हाँ देखो सब नहीं 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 नहीं, स्कूल के कार्य में मैं नाचने का नहीं. अरे भैया नाचने लगा. हाँ 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 हाँ. अरे नाचो, चलते जाएगा ये. मैं नाचने लगा. हाँ हाँ नाचने लगा. हाँ 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 हाँ. ओके वंडरफुल. अभी बैठना नहीं, झप्पी मार के बैठो. हाँ पार्टनर को झप्पी, गर्ल टू गर्ल, बॉय टू बॉय. अरे झप्पी नहीं मारे. देखो गया, आपका बच्चा भी नहीं मारेगा. झप्पी नहीं मारेगा. हम लोग इतना घबराते हैं
तो क्या सिखाने का आया? देखो, आज ये पौधा वृक्ष में बदल गया, हाँ हाँ छाव देने लगा। मतलब क्या सिखाने आए? क्या सिखाने आए बच्चों को? हम बोलते हैं मेरा बच्चा महान हो, मेरा बच्चा ये करे वो करे, ठीक है मानता हूं, लेकिन हम करते हैं क्या? हम वैसे जीते हैं क्या? हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम करते हैं? पूछो। तो हमको क्या सिखाने आए हैं? हमारे जीवन में बच्चे आते हैं क्यों? हमको सिखाने के लिए आते हैं। क्या सिखाने आते हैं बताओ? मनसा वाचा का इन अदर वर्ड्स, हमको खेल खेलने सिखाने आ रहे हैं। मानते हैं कि नहीं? हमको जैसा जीवन को खेल लेना है, ये इसलिए बच्चे आते हैं। भैया मम्मी आप भूल गए, डैडी आप सीरियस हो गए, ऑफिस में जा रहे हो, मुझको तो पैदा क्यों किया? मम्मी आपको खाने और सास ससुर नहीं लगे थे, हमको पैदा क्यों किया? ये पैदा क्यों किया? पैदा हो गए हैं हमारा जीवन में जो हम सीरियस हो गए, राइट और नो? बिजनेस में सीरियस, जॉब में सीरियस, कारोबार में सीरियस, ऑफिस में सीरियस, घर के काम में झंझोट में सीरियस, हर चीज हम गंभीरता हो गए। इसलिए बच्चे आते हैं, बाबा खेलो वापस खेलो। लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसा करो, ऐसा करो, चुप, शट अप, ये करते हैं। जब ये मैंने ऐसा जोर से बोला, आपके जीवन, आपके अंदर क्या हुआ था? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? डर हुआ। यही मैं समझाना चाहता हूं। जब भी हम चिल्लाते हैं बच्चों में, उनका राइट ब्रेन होता है का मतलब क्या है? राइट ब्रेन जो है सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है मतलब जो उनके अंदर में जो स्पॉन्टेनिटी है, क्रिएटिविटी है, वो टूट जाता है। तो मैं आपको 5 मंत्र देने वाला हूं। अगले 15-20 मिनट में 5 मंत्र देने वाला हूं। वो मंत्र को आपको इस्तेमाल करना है। आप 7 दिन मेरी बात सुनो, 7 दिन। अगर आपके जीवन में बदलाव आया तो आप कंटिन्यू रखो। अगर बदलाव नहीं आया, जो भी मैंने आज बोला भूल जाओ। 7 दिन मेरी बात सुनो। और कितना बात सुनना है? सिर्फ एक, जैसे आप 2 घंटे के लिए इधर आए हैं, शाम को हमारा ऑनलाइन होता है। आप 1 घंटे के लिए 7 दिन, ये हमारी तरफ या गुरुजी की तरफ से गिफ्ट है आपको। 7 दिन आप 1 घंटा दो हमको, हमारे मतलब गिफ्ट है। आपके जीवन में बदलाव आए तो कंटिन्यू रखो, आपके बच्चों में बदलाव आए कंटिन्यू रखो, और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बदलाव आए तो कंटिन्यू रखो। बदलाव नहीं आया, भूल जाओ, जो भी मैंने बोला सब बकवास। ये गेम खेलने के लिए तैयार? खेल एक खेल है, हर चीज एक खेल है। अच्छा लगा कंटिन्यू, अच्छा नहीं लगा भूल जाओ। यस, ओके। पहला नियम, पहला मंत्र, जो पहला मंत्र जो है, आज से हम अपने बच्चों को नहीं चिल्लाएंगे। देखो हट गया। कोई बात नहीं, कुर्सी भी टूट गया। कोई बात नहीं। तो आज के बाद बच्चों को हम नहीं चिल्लाएंगे। मंजूर? 7 दिन, हर चीज एक खेल है। 7 दिन बच्चों पर हम नहीं चिल्लाएंगे। हाथ ऊपर हो। अगर चिल्लाएंगे तो उनका राइट ब्रेन को क्या होता है बताओ? टॉक मतलब
सिकुड़ जाता है। शट अप! घबराहट हो गई तो हम घबरा गए। ऐसे बच्चों को भी होता है, उनका ब्रेन खुला है। आप मानो मुझे इस पर 35 साल का रिसर्च है और मेरे बच्चों को, मेरे पास भी एक बायोलॉजिकल बच्चा है, 24 इयर्स का हमारा तजुर्बा है। तो मैंने उस पर चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, लेकिन पूरे 25 साल में, 24 साल में 4 टाइम हमने कितना चिल्लाया। तो आज से मंजूर 7 दिन के लिए बच्चों पर चिल्लाना नहीं। हाथ ऊपर कीजिए, पहला मैजिक मंत्र। गुड, गिव, ब्यूटीफुल। सेकंड मंत्र हम बोलेंगे, हमने हाथ ऊपर किया, वापस से हाथ ऊपर करो, 100% 90 डिग्रीज। हाँ, हम बोलेंगे, इधर से जाएंगे, गाड़ी पे वो नहीं बैठेंगे, चिल्लाएंगे, आपका चिल्लाहट शुरू हो जाएगा। हो जाएगा, मैं बोलता हूं, मेरे बोलने से नहीं होता, लेकिन होता है। तो सेकंड जो है, अक्सर जब हम चिल्लाते हैं, आपने बहुत टाइम चिल्लाया, आपने बहुत टाइम मारा भी होगा, कोई बात नहीं। अगर चिल्लाने के बाद या मारने के बाद आप बच्चों को जाकर क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, जोर से एक वर्ड बोलते हैं, जोर से और जोर से, सॉरी। तो सेकंड जो नियम है, हम उनको सॉरी नहीं बोलेंगे, हम उनको सॉरी नहीं बोलेंगे। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, नहीं, देखते हैं। आप आ जाओ, स्टेज में आ जाओ, आ जाओ। हाँ, ओके, हाँ। और आपका लड़का है? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल का है? 12 इयर्स। ओके, यू ओनली कम। चलो, आ जाओ, आप दोनों आ जाओ स्टेज पे। हाँ, अभी आप देखो, आपको एक पार्टनर लेना है। आई वांट द वॉलंटियर सपोर्ट। पार्टनर क्या लेंगे? ओके, ऐसा और ऐसा। ओके, हाँ, ऐसा आपका कुर्सी मुड़ के ऐसा बैठो पहले सब लोग। ओके, एक ऐसा, एक इधर। ओके, हाँ, चलो बैठो बैठो। हाँ, हो गया? ओके, हाँ, जो ये बाजू बैठे हैं ना, आपका नाम? पल्लवी। और नाम? आपका नाम? स्वरूप। ओके, देखो, जो इनका इधर जो बैठे हैं ये बाजू, ये मम्मी या डैडी। ओके, तो और मम्मी एंड डैडी, रेज योर हैंड्स। मम्मी डैडी रेज योर हैंड। ये बाजू, हाँ। ओके, और ये बाजू जो बैठा है वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। ओके, ओके, ऑल मम्मी डैडी रेज योर हैंड। हाँ, ये बाजू, राइट। और ऑल द बच्चे जो है रेज योर हैंड, राइट। तो आप सॉरी नहीं बोलेंगे आज के बाद। फिर क्या बोलेंगे? 4 वाक्य बोलेंगे। वो 4 वाक्य क्या है? मैं बोलता हूं, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर आप उनको मेरे पीछे पीछे, पल्लवी के पीछे पीछे बोलो। ओके, सो पहला, ओके, स्वरूप नहीं बोलने का, उनका नाम बोलने का, बच्चे का नाम, वो उनका नाम है। ये बच्चे का नाम स्वरूप है, उसका नाम जो भी नाम है वो तो बोलो, नाम पूछो एक दूसरे का। हाँ, अभी मालूम पड़ गया, आप छोटे बच्चे को बोल रहे हैं। ओके, ऐसा कम क्लोज। ओके, ओके, 4 वाक्य। स्वरूप, जब मैं आप पर चिल्लाई, तो आपको बुरा लगा होगा। बोलो, क्योंकि हमारे बीच में जो प्रेम का संबंध है, उस पे खराश आया। वापस से, स्वरूप, हाँ, उनका नाम।
जब मैं आप पर चिल्लाया, जब मैं आप पर चिल्लाई, आपको बुरा लगा होगा, आपको बुरा लगा होगा, क्योंकि हमारे बीच में जो प्रेम का संबंध है, उसमें खराश आया। तो नेक्स्ट टाइम आप मेरे से क्या चाहते हैं, मुझे कोई राय दीजिए, मुझे कोई सजेशन दीजिए, ताकि मैं आपको चिल्लाए नहीं, और आप भी मेरी बात सुन सकते हैं। समझ गए? वापस से करता हूँ और फिर मैं आपको पूछता हूँ। स्वरूप पहला, जब मैं आप पर चिल्लाई, आपको बुरा लगा होगा, क्योंकि हमारे बीच में प्रेम का जो संबंध है, उस पे खराश आई। नेक्स्ट टाइम मैं ये ना करूं, उसके लिए आपको क्या सजेशन है, ताकि मैं इस तरह से बर्ताव ना करूं, नाउ क्वाइट नाउ प्लीज साइलेंस। स्वरूप उठो। अभी मम्मी ने ऐसा बोला, आपको कैसा लगा बच्चों? बहुत बुरा। हाँ, बहुत बुरा। बुरा, ओके। बुरा नहीं, मम्मी ने बोला कि जब मम्मी ने चिल्लाया तो मम्मी ने आपको बोला कि मेरे से ये हुआ, तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे राय दीजिए। तो आपको कैसा लगा? अगले बार मत चिल्लाओ। हाँ, अगले बार नहीं करो। तो आपको अंदर से कैसा लगा? बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। हाँ, लेकिन आप बुरा क्यों बोल रहे हो? मम्मी से शायद घबरा रहे हैं, राइट? हाँ, कोई बात नहीं। अभी मैं सब बच्चों को पूछ रहा हूं, जो बच्चे ये बाजू था, कैसा लगा आपको? जोर से। अच्छा लगा। अभी मैं मम्मी को पूछ रहा हूं, आपको जब बात करते हैं तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। हाँ, मम्मी को भी अच्छा लगा, बच्चे को भी अच्छा लगा। क्यों? प्यार से बात किया और शांति से बात किया। और ऑल द चिल्ड्रन कैन से आल्सो, क्योंकि आप इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन का एक कला होता है। बच्चों के साथ किस तरह से बात करना हमारे सर जी है वो वही सिखाते हैं। योगेश भाई यही सिखाते हैं। यू कैन टर्न देयर पे चेयर्स नाउ, कुर्सी टर्न कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, ओके, गिव देम अ बिग 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 क्लैप। थैंक यू। ओके, सो ये सेकंड है। पहला क्या करना है? पहला मंत्र क्या है? चिल्लाना नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाएगा भैया, हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में, एक घंटे में चेंज नहीं होता है। अगर हो गया तो ये 4 वाक्य बोलना है। कौन सा? स्वरूप बोलो। जब मैं आप पर चिल्लाया, आपको बुरा लगा होगा। ऐसा भी करो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, जब मैं आप पर चिल्लाई, आपको बुरा लगा होगा, क्योंकि हमारे बीच में जो प्रेम का संबंध है उसमें खराश आई। तो नेक्स्ट टाइम आप मेरे से क्या चाहते हो, किस तरह से मैं आपको पेश आऊं, ताकि ये ऐसा चीज ना हो। ये 4 वाक्य अगर आप बोलेंगे तो उसको अंदर से आप एक्चुअली सॉरी ही बोल रहे हैं, लेकिन सॉरी में आज तक चेंज नहीं हुआ है। आपने 1000 टाइम सॉरी बोला और वही चीज बार बार होती है। लेकिन ये 4 वाक्यों में बच्चा समझता है कि मम्मी भी एक ह्यूमन बीइंग है, मैं भी, ये होता है। वो सोच में पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अपना बिहेवियर को इंट्रोस्पेक्ट करेगा और खुद ब खुद जो भी चेंज लाना है वो शायद लाए। गारंटी नहीं है, लेकिन शायद। यू गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ थर्ड थिंग जो आप नहीं करेंगे, 3, ओके, तीसरा जो मैजिक मंत्र है, ओके, इज आप आज तक, पिछले साइड, हाँ,
हाँ, आज तक आप उसको डिसिप्लिन करना चाहते थे, राइट? यस और नो? आज से आप उसको इनडिसिप्लिन रहने दो, उसको डिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन। बच्चे कितने खुश, अभी शौक हो गया। इनडिसिप्लिन रहने देंगे तो बहुत सा चीज आपका ये उसका भी एक कला है। इसका मतलब क्या है? वो पेंटिंग करना चाहते हैं, हर घर में एक छोटा सा दीवार रखो जिधर पेंटिंग बिंदास कर सकते हैं, पेपर वेपर रखो। हर घर में एक काला दीवार रखो, जहां काला पेंट करेंगे, वो चौक रखो, वो जितना मर्जी करना है। तो जब वो गंदगी करता है, बेटा गंदगी का नहीं, गंदगी तो कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, मेस करता है। मेस, ये मेस का जगह है, ये पेंटिंग का जगह है, ये ब्लैक बोर्ड का जगह है, ये खेलने का जगह है। हर चीज जो वो करना चाहता है करने दो, उसका एक नियम बनाओ, एक जगह बनाओ। जब वो जगह बनाएगा, वो करेगा, तो पूरा घर को मैल नहीं करेगा, एक जगह को करेगा। हम क्या बोलते हैं, ये ठीक नहीं है, इधर क्यों किया, चड्डी इधर क्यों रखा, ये उधर, ये पूरा टाइम हमारा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन यही होता है। यस और नो? इनडिसिप्लिन रहने दो। चौथा मंत्र, ओके, चौथा मंत्र क्या है? हम स्कूल भेजते हैं, स्कूल को बच्चे को भेजते हैं और पेरेंट टीचर्स मीटिंग आता है, सब पेरेंट्स आते हैं टीचर्स को मिलने को। और पहला चीज हम क्या पूछते हैं टीचर को? जोर से बोलो, जोर से, जोर से, मार्क्स पूछते हैं, राइट और नो? तो आज के बाद ओके, चौथा नियम, बच्चे को फेल होने का मौका दीजिए। एक के बाद एक धड़क। फेल होने का मौका दीजिए, फेल होने दीजिए। मैं जाऊंगा, मुझे जूते मारेंगे सब लोग। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, कितने लोग आज तक कभी ना कभी आपके जीवन में फेल हुए हैं? ओके, हाथ ऊपर करो। अभी जिनका हाथ ऊपर नहीं है, हाथ ऊपर रखना। जिनका हाथ ऊपर नहीं है, मैं उनको प्रश्न पूछा, आप जीवन में कभी फेल नहीं हुए? कभी फेल, कोई भी एरिया में फेल नहीं हुए? शादी में फेल नहीं हुए, बच्चों पैदा में फेल नहीं हुए, या सास ससुर के बारे में फेल नहीं हुए, जॉब में फेल नहीं हुए, अपना बिजनेस में फेल नहीं हुए? कभी भी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए? हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? वो फेलियर के कारण आप इधर बैठे भैया, वो फेल हुए इसीलिए आप इधर खड़े हुए हैं। उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। तो बच्चों को क्यों सीखने नहीं देते हैं? उसके गले के ऊपर क्यों पड़ते हैं? जब आप उनको फेल करने का मौका देंगे, छूट देंगे, 99% ऑफ द पीपल विल पास। 99% पास हो जाएंगे जब आपको छूट देते हैं कि आप फेल हो, मैं आपके साथ हूं। मैं भी फेल हुआ सेकंड स्टैंडर्ड में, आज खड़ा हूं ना इधर। मेरी मम्मी ने गले लगाया। आप क्या करते हैं? स्टडीज देखे हैं, अगर आपका ग्रेड्स है ना ABC, समझो 6 सब्जेक्ट है, बच्चे को 2 में A मिला, 2 में B मिला, 2 में C मिला। सब बच्चे, सब माँ बाप, मैंने भी ये गलती किया है लाइफ में, सब माँ बाप जो है कौन से ग्रेड में फोकस करेंगे? 2A, 2B, 2C। सब माँ बाप टीचर के पास जाएंगे और बच्चों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बेटा C क्यों आया? A था तो C क्यों आया? एक प्रिंसिपल है न्यूरोसाइंस का, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, वेयर यू प्लेस योर अटेंशन इज वेयर द एनर्जी गोज। ओके, हिंदी में, जहां भी मैं अपना अटेंशन देता हूं वहीं हमारा एनर्जी जाता है। जहां मेरा एनर्जी जाता है
वहां एक्सपैंड होता है। यानी कि आप सी पे एनर्जी दिया तो सी और जो ए है ना वो बी हो जाएगा, जो बी है सी हो जाएगा। हमको क्या करना है, ए है ना बेटा, ए फैंटास्टिक ब्यूटीफुल, फिर वो जो बी है ना ए हो सकता है, और सी जो है फिर बी और ए हो सकता है। ये दुनिया का ब्रेन का नियम है। तो चौथा मंत्र क्या है, उसको फेल होने दो। फेल होने दो मतलब फेल नहीं हो, आप अपना मोह जो है, अपना जो अटैचमेंट जो है, अपना जो प्रेशर जो है, अपना जो लास्ट में उसका गला जो पकड़ते बिना पकड़ना, उसको जो ब्लड प्रेशर, आजकल मैंने स्कूल में किसी ने सुसाइड किया भैया, स्कूल के बच्चे ने। क्यों? प्रेशर किसका? नंबर 1 मां बाप का। फिर आता है स्कूल, बच्चा तो करेगा, बच्चा तो मुलायम है, उसका ब्रेन कुछ भी उसको शेप देगा वो हो जाएगा, लेकिन मेन नंबर 1 इज मम्मी डैडी। फिर बहुत लोग बोलते हैं टीचर को बोला, नहीं मैं बोला पहले मम्मी डैडी को बात करूंगा, फिर मैं टीचर को बात करूंगा, और फिर बच्चों को दूंगा। आज 7 मिनट का मेडिटेशन उनके जीवन चेंज हो गया। मैं बोला आप चाहिए ये रोज हो जाए? हाँ यस सर वी वांट इट। ऐसे पहले मैं मम्मी को दूधने वाला हूं, अभी कुछ समय में हम करने वाले हैं वही, तो वो करेंगे, और वो करेंगे, अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। यस या नो? तो वो गिफ्ट चाहिए, यस या नो? यस। तो हम क्या करने हैं, ये पांचवा, डोंट ट्राई टू कंट्रोल। ये कंट्रोल करना बंद कीजिए। बच्चों को कंट्रोल, बच्चों नहीं, मम्मी डैडी को, हस्बैंड को वाइफ को कंट्रोल करता है, वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल करती है, बच्चे को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल छोड़ दीजिए, अपना जीवन को आप मुक्त कीजिए, फ्री। पहला जरा जोर से बोलो, पहला चिल्लाना नहीं, लेकिन हो गया, गलती से हो गया तो सेकंड हम सॉरी नहीं इस्तेमाल करेंगे, 4 वाक्य इस्तेमाल करेंगे, इसका भी वीडियो आएगा। तीसरा, उसको इनडिसिप्लिन रहने दे, यानी कि नियम बनाओ जहां हर चीज वो मस्ती में कर सकते हैं। चौथा, फेल होने का मौका दीजिए, उनके ऊपर ब्लड प्रेशर, उनका प्रेशर मत डालो। फेल होने दो, पास हो जाएगा, और पास नहीं हुआ मेरे जैसा बन जाएगा। बस। सचिन तेंदुलकर भी फेल हुआ, अमिताभ बच्चन भी 50 फेल हुए, पंडित जसराज भी फेल हुए, जितने भी अपना धीरू भाई अंबानी फेल हुए, बिल गेट्स फेल हुए, जितने नाम आप सुनते हैं फेलियर ही थे, फेलियर से सक्सेस। एंड लास्ट वाला, कंट्रोल मत करना बच्चों को, लेकिन ये सब होता है। देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, ओके, इज हम अक्सर, मैंने अभी इतना कुछ बोला 1-पौना घंटा से, आपको अच्छा भी लगा और खराब भी लगा। यस और नो? अच्छा लगा, हाँ मैं ऐसा बनना चाहती हूं, हाँ ये जो बोलता है इसमें कोई सत्य है, हाँ मैं भी अपने बच्चे को विवेकानंदा, शिवाजी महाराज वगैरह 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 बनाना चाहती हूँ, गांधी जी, इस तरह से बिल गए, ये मैं चाहती हूं। ये आपके दिमाग में चल रहा है, यस और नो? जोर से। ये आपका एक भाग दिमाग चल रहा है कि यार सही है, दूसरा भाग दिमाग चल रहा है यार मैं अभी तक ऐसा नहीं थी, मैंने कितना मारा है, मैंने मनोज भाई जैसा 4 टाइम नहीं, मैंने तो 400 टाइम मारा है, या 400 टाइम गालियां दी, या 400 टाइम ऐसा है। इस तरह से हम अपने आप को नीचा गिराते हैं। यस और नो? हमारा जो सेल्फ एस्टीम है ऊपर जाता है या नीचे आता है? जोर से, जोर से। नीचे। अपने बारे में अच्छा लगता है या खराब लगता है? खराब। यही है बीज जो हमको नुकसान करती है। तो मैंने बच्चों को ये बोला है या आपको बोल रहा हूं
कि आप गुस्से हुए, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, अपने आप को माफ करो। आपने 400 टाइम उसको मारा है, कोई बात नहीं, आज आप अपने आप को माफ करो, और अपने आप को माफ करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रेम करना। प्रेम, जब आप खुद को प्रेम करेंगे तो बच्चों को अनकंडीशनल प्रेम। आज हम बच्चों को क्यों मारते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को बहुत मारा है, बहुत गुस्सा किया, आज भी गुस्सा है। आपको मालूम नहीं, आपको अपने प्रति गुस्सा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं शिवाजी महाराज जैसा नहीं हूं, मैं इसके वैसा नहीं हूं, मैं मनोज भाई जैसा नहीं हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं इसके जैसा। आप अपने ही नजरों में गिर गए हैं। यस और नो? जोर से। बच्चों के प्रति नहीं, बिजनेस में, जॉब में, हर करियर में। तो ये जो चीज है ना, आज मैं वो गिफ्ट देने वाला हूं गुरुजी के माध्यम से कि अपने आप को माफ करो। और क्या करना है, अभी हम कुछ वीडियो मेडिटेशन बजाने वाला है। जो भी आपको दुख होता है ना, आता है कि नहीं दुख, खराब लगता है कि नहीं, दिन में खाना ठीक नहीं बना, बच्चे नहीं सुने, पति नहीं सुना, पत्नी ने नहीं सुना, घर में सास ससुर के बीच में ये हो रहा है, बहुत समस्या है, ये दिल में भर जाता है। यस और नो? कैन यू हैव अ लाउड यस? उसको आपको कैच करना है और छोड़ देना है। पास इट ऑन। किधर? जहां से आया है उसको पास इट बैक करो। यूनिवर्स से आया है, पास इट ऑन। मैंने बच्चों को बोला आप झाड़ को दे दो, आकाश को दे दो, किसी को। आपको बोलता हूं आप किसको भी दे दो, आकाश को दे दो, हनुमान जी को दे दो, गणेश जी को दे दो, शिव जी को दे दो, जिनका आपका इष्ट देवता है उनको दे दो, या दे दो, ये नहीं लगा, दे दो, दे दो, वापस। ये मेरा नहीं। यू आर परफेक्टली वंडरफुल द वे यू आर। मैं ये कहना आया हूं, जैसा भी आप है। आपके गुस्से आते हैं फिर भी यू आर ब्यूटीफुल। आप झगड़ा करते हैं फिर भी वो ब्यूटीफुल। आप जितने भी मिस्टेक्स किए आज तक, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। वंडरफुल सोल्स। हमने पहचाना नहीं, ये हम आपको पहचान करने के लिए आ रहे हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, तो आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और जो भी आप सुनेंगे उसको ही करते जाइए। ओके? फीलिंग को पकड़ना, भेज देना, भेज देना, भेज देना। ओके, शुरू करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हाथ एक के ऊपर एक रखिए। अगर आपके पास किसी के प्रति बदले का भाव है, ठीक है, बदले का भाव है, वो भी ठीक है, उसे स्वीकार कीजिए और फिर लेट इट गो, आगे पास कर दीजिए। अगर आपके पास किसी के प्रति गुस्सा है, ये भी ठीक है, गुस्सा है, स्वीकार कीजिए और आगे बांट दीजिए, आगे लेट इट गो, आगे सौंप दीजिए। किसी के प्रति फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो एक इमोशन है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, एक फीलिंग है, स्वीकार कीजिए और आगे सौंप दीजिए। किसी से आप डिस्टर्ब्ड है, इरिटेटेड है, वो भी ठीक है, स्वीकार कीजिए और आगे पास इट ऑन। ये करेंगे
तो इसको बोलते हैं सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हम दूसरों से प्रेम अपने आप आता है। अगर हमारे पास कोई डर है, किसी के प्रति डर, किसी सिचुएशन में डर, वो भी स्वीकार कीजिए और आगे सौंप दीजिए। पास इट ऑन। शर्मिंदगी है, दोषी ठहरा रहे हैं खुद को, वो भी ठीक है। किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, वो भी ठीक है। स्वीकार कीजिए मैं ऐसा कर रहा हूं और उसे आगे बांट दीजिए। अगर आपके जीवन में आपको कमी महसूस हो रही है, स्वास्थ्य की कमी, धन की कमी, रिलेशनशिप्स में कमी, ठीक है, ये भी ठीक है। स्वीकार कीजिए, हाँ, आगे छोड़ दीजिए। किसी के प्रति कंप्लेंट है, लोगों के प्रति, विश्व के प्रति, ठीक है, आप कंप्लेन कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए और उसे भी जाने दीजिए। जाने दो। किधर जाने दो? जाने दो ब्रह्मांड को, विश्व को। जिससे भी आप सीख रहे हैं, वही चैनल से ब्रह्मांड को जाने दीजिए। अगर अंदर से आपको चंचल हो रहा है, खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, स्वीकार कीजिए और जाने दीजिए। इसको कहते हैं अपने आप से प्रेम करना, सेल्फ लव। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, आप दुखी है अंदर से, ठीक है, दुखी होना भी ठीक है, उसे भी जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए, बांट दीजिए ब्रह्मांड को, विश्व को। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, किसी के साथ मोह है, वो भी ठीक है, स्वीकार कीजिए और जाने दीजिए। पास इट ऑन। अगर अंदर से आप निराश है, उसको भी स्वीकार कीजिए और ब्रह्मांड को भेज दीजिए थ्रू द चैनल यू आर गेटिंग इट फ्रॉम। किसी के प्रति जलन है, किसी के साथ आप तुलना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो रहा है, हम मनुष्य हैं, लेकिन उसे जाने दीजिए, विश्व को, ब्रह्मांड को भेज दीजिए एक चैनल के थ्रू, जहां से आप सीख रहे हैं, उस थ्रू ब्रह्मांड, ईश्वर भेज दीजिए। ये सब जो है भाव है, और ये भाव सभी के पास आते हैं। जब हम इसको स्वीकार करते हैं, हम अपने आप से प्रेम करना लग जाते हैं। जब हम इसको आगे
भेज देते हैं, पास इट ऑन करते हैं, ब्रह्मांड को वापस देते हैं, तो हम अपने आप से ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, महसूस करना है और जाने देना है। इसको बोलते हैं अपने आप से प्रेम करना। सेगमेंट इंटेंडिंग, ये क्या है? 1.5 घंटे में अलार्म लगाना, अपने आप को याद दिलाना कि हमारा तत्व प्रेम है, हमारा तत्व खुशी है। 1.5 घंटे के बीच में आहिस्ता से नीचे देखते हुए आंखें खोलना। अभी मैं आपको सबको पूछ रहा हूं, कैसा लगा? कितने लोग शांत, ऐसा लगने शांति आई? ओके, कितने लोग शांत हो गए? ओके, कितने लोग को लगता है कि टेंशन कम हो गया? ये क्यों हुआ मालूम? क्यों? हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को स्वीकार किया। जो आपने सो कॉल्ड गलती नहीं किया, लेकिन आपको लगता है गलती किया। गलती नहीं किया भैया, आपने किसी को डांटा, गलत नहीं है, लेकिन हमको लगता है उसको वापस दे दो। जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे तो ये हर 1.5 घंटे में याद रखना है। जो आप 1.5 घंटे में हाथ अलार्म लगाया ना, अभी बजेगा अलार्म 2-3 मिनट में, जब बजेगा आपको पहले हाथ रखना है ये, और ये 5 मेरे मुताबिक में जो नहीं हुआ उसको थैंक यू बोलना है, और ये 5 नियम को याद करना है बस। फिर ये हाथ अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जाए, यही करना है। ये याद नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको फोन करेंगे, अभी आपको एक फॉर्म देंगे, और गिव मी 1 पेपर 1 सो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म में आपका नाम, व्हाट्सएप नंबर वो बताएंगे आपको। तो जब हम देंगे तो ये फिल करेंगे, फिल करने के बाद 1 या 2 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा, ये वीडियो जो दिखाया वो आ जाएगा, जो हर 1.5 घंटे में क्या करना है वो आ जाएगा, जो स्टेज में किया 4 वाक्य वो आ जाएगा, और हम जो भी कार्यक्रम करते हैं वो आ जाएगा। हम आपसे यही चाहिए, हमारी तरफ से गिफ्ट है। कितने दिन? 7 दिन। और कितना रोज कम से कम 7 दिन में कितना टाइम देना है? 1 घंटा शाम को अपने समय में आपको लिखना है। अगर आपको अच्छा लगा तो 7 दिन में आपको समझ आएगा। फिर 1 साल का एक मेंबरशिप है हमारा, उसमें आपको कितना टाइम देना है मालूम है? रोज का कम से कम कितना? ये सब याद रखने के लिए कितना टाइम देना है? कितना टाइम? 5 मिनट। सबके पास 5 मिनट है? 5 मिनट है ना लाइफ में? बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, परिवार के लिए 5 मिनट है? तो 5 मिनट मेरे हिसाब से चलो, 1 मिनट ये करने का, 1 मिनट ये करने का, 1 मिनट सुबह ये करने का, 1 मिनट रात को सोने से पहले ये मेडिटेशन चालू करके सो जाने का। इस तरह से 5 हम चीज बताएंगे, वो 1 साल करेंगे। आपका जो मुझे 30 साल लगा, आपको 1 साल में मिल जाएगा। लेकिन वो क्या है हम नहीं समझा सकते। 7 दिन 1 घंटा दो, उसको समझ लो। फिर अलार्म बजा तो पहले हाथ इधर रखो, फिर अलार्म बंद करो और बोलो दिमाग में, मेरे मुताबिक जो हुआ धन्यवाद, मेरे मुताबिक जो नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद। 5 नियम याद करो जो अभी आपको समझा, जो भी याद आया। फिर दूसरा हाथ इधर रखो और बोलो अगला 1.5 घंटा मेरा सबसे बेस्ट 1.5 घंटा है। तो मैं पूरी तरह से 100%
जी रहा हूं, जी रही हूं, आनंद में जी रही हूं। इतना ही करना है बस। इसको 10 सेकंड लगता है, दिन में 1.5 घंटे में 1 मिनट लगता है एक्चुअली। तो इतना भी किया, जीवन बदल जाएगा। आप आजमा के देखो, अगर आपने किया। ओके, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको पूछूंगा कैसा लगा। ओके, तो लाइट्स बंद करेंगे और ये 2-3 मिनट का वीडियो है, गौर से देखो, गौर से। ओके, बहुत मतलब सिंसियरली सी दिस एंड वी विल पुट दिस। ओके, देखो लाइट्स, या ऑल ये वीडियो में आपको क्या जाना, कैसा महसूस हुआ वो बताओ। कितने लोगों का दिल नरम हो गया, पीसफुल हो गया, या करुणा भाव आया? यस, क्यों आया? आंखों में सब कुछ है, ये बाहर का आंख नहीं है। आपके आंख जो है आप भीतर लेके जाओ और भीतर जानो कि आप बहुत अच्छे हैं। 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, हम कोस रहे हैं हमको, अपने आप को। अपने से नहीं कोसो, अपने से गले लगाओ। जब आप अपने आप को गले लगाएंगे, बच्चों को गले लगाएंगे। बच्चे फेल भी हो जाएंगे, गले लगाएंगे। बच्चे चिल्लाएंगे भी, गले लगाएंगे। बच्चे मस्ती भी करेंगे, गले लगाएंगे। बच्चे को हर पल में गले लगाएंगे, क्योंकि आपका स्वभाव है गले लगाना। लेकिन हमने खुद को नहीं लगाया तो किसी को नहीं लगा सकते हैं। खुद से प्रेम करने का मतलब है खुद को माफ करो और आज से शुरू करो। ठीक है, हो गया ना, वालिया से वाल्मीकि बने ना, तो आप वालिया थे, आप वाल्मीकि थे, वाल्मीकि है। ये हम आपको बताने चाहते हैं। और ये जो वीडियो है, अगर ये जीना चाहते हैं तो ये मेरा खुद का अनुभव है। ये हमारे बेटी है जिन्होंने ये वीडियो बनाया, 24 साल। हमने भी यही जो 5 नियम है मैंने इस्तेमाल किया और मैं आपको बोल रहा हूं। आज उनको उनका ये वीडियो है। Beautiful or no? So give the big clap to
yourself. तो अभी हम दीपेश, आप 5 मिनट लीजिए ये फॉर्म को भरने को। दीपेश जी बताएंगे आपको किस तरह से भरना है। यस जी, तो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, आपको फॉर्म और पेन दे रहे हैं। आप एक फॉर्म अपने पास रखिए, बाकी का पास करिए पीछे। एक फॉर्म अपने पास रखिए और बाकी का पीछे पास करिए। जहां फैमिली आपको हेल्प करना चाहते हैं, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए। और ये जो मेंबरशिप जो है, ओके, हम आपको आमंत्रण करते हैं हमारे आश्रम में, ऋषि गुरुकुलम में ये आएंगे। तो रोज हम छोटे छोटे वीडियो बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने आज आपको बताया उसके बारे में ये छोटा सा वीडियो देखो। ओके, ये छोटा सा, तो ये है पेरेंटिंग के ऊपर। पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों को कैसे। कितने लोगों को अभी लास्ट 2 घंटे में अंदर से कुछ न कुछ आपको एक रियलाइजेशन हुआ। रियलाइजेशन मतलब यार पहले मैं ऐसा सोच रहा था, अभी सोच बदल गया है, कुछ तो सोच बदल गया। कितने लोगों को ऐसा हुआ? पूरा हाथ ऊपर। ओके, तो इसमें से कितने अंदर में आपके अंदर में उत्सुक है कि जैसे बच्चे में उत्साह है, कितने लोग में अंदर उत्साह बढ़ गया? तो उत्साह बढ़े तो 5-6 लोग इधर से, 5-6 लोग इधर से स्टेज में आओ और वो बताओ कि आपके अंदर में क्या बदलाव आया। सो जल्दी जल्दी आएंगे इधर से जो जिसके अंदर में उत्साह है। जल्दी, या उधर खड़े हो जाओ, उधर माइक आ जाएगा। उधर ही खड़े हो जाओ, उधर माइक आ जाएगा। वहाँ पे हम भेज देंगे। हाँ, खड़े हो जाओ बस। सर जी खड़े हो जाओ, हाँ माइक आएगा। मेरा नाम विनायक आनंदा पानसेरे है। मैं मेरी वाइफ और 2 बच्चों के साथ आया था। मैं आपका, संजोत वैद्य मैडम का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ माइंड में लेके आए थे वो पूरा कन्वर्ट चेंज हो गया सर 2 घंटे में, क्योंकि लगता था हम बड़े हैं, हमें एक्सपीरियंस है तो हम इनको सिखाएंगे, तो अभी गलत है। आज से, अभी से, राइट नाउ ये हमें सिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप टीम का, आप सभी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। मंत्री, पहले तो थैंक यू सर, आपका लेक्चर मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी सुनने की मुझे, और जो लेके आई थी उससे बहुत ज़्यादा मिला मुझे यहाँ पे। और मैंने मतलब पेरेंटिंग का मैं खुद मतलब बहुत लास्ट ईयर से सोच रही थी करना, क्योंकि मेरे बच्चे में मुझे जो दिख रहे थे बदलाव, उस हिसाब से मुझे भी लग रहा था कि खुद मैं सीखूं करके। तो मैंने छोटा सा मतलब सीखी थी मैं 6 मंथ का। और आज जो मतलब सिर्फ आप जो बोल रहे हैं ना कि सोचते हैं हम लेकिन करते नहीं है, वैसे हो रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ रोज़, लेकिन नॉट इजी, इतना इजी नहीं है वो। तो अभी जो आज आपका जो लेक्चर, आपने जो टिप्स दिए वो मुझे बहुत पसंद आए, और अभी मैं वो रोज़ फॉलो करूँगी। और खुद में बहुत सारे चेंजेस लाऊंगी, और आगे भी आप जैसा कुछ करूँगी कि बाकी बच्चों का भी कुछ मतलब अच्छा हो। नमस्ते, नमस्कार करती हूँ। मैं सुनीता रेवगढ़े। मैं ये सुन के आई हूँ, मेरी बहू इधर है टीचर करके स्ट्रॉबेरी में, तो बोली आ जाना। तो मेरी बेटी 12th में है, तो उसने मैंने उनको बोला कि मैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के लिए जा रही है, क्योंकि मैं लेट हो गई है। एक बेटी MBBS में है अभी, तो मैं फिर भी जा रही है, पेरेंटिंग क्या होता है करके सीखना है मुझे। तो बोलती क्या होता है मम्मा? कुछ नहीं होता है, बस प्यार करो सबको। मतलब प्यार क्या होता है? मतलब पहला खुद को करो, तब बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। तो मैं यहाँ आके वही सीखी। एक्चुअली आपने वो बोला ना कि बच्चे सिखाते हैं हमें, तो मैंने वो नोटिस किया, क्योंकि वो वही बोली, यदि आप कुत्ता बिल्ली को प्यार करते हैं तो आप में अंदर है, तो आपके बच्चों के अंदर अपने आप आ जाएंगे। दूसरा पेरेंटिंग कुछ होता नहीं है, मेरे बेटी ने मुझे सिखा दिया। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे आके जो आपने जो बोला, इधर आंखें जो दिखाई, तो आपने जो बोला कि मतलब एवरीथिंग, मतलब जो भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं
तो अपने आप लेट इट गो होता है, मतलब उसको लेट इट गो करने का ज़रूरत नहीं, हमने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात कि जो आँख हमने देखा, मैंने यहाँ आँखें देखी तो मैंने ये देखा कि सारा ब्रह्मांड हमारे आँखों में ही समाया है, तो उससे अलग तो कुछ लाइफ नहीं है, बस हमने उसको देखना है, अपने आप को देखना है। हेलो, नमस्ते सर। सर मतलब मेरी बेटी जब से पैदा हुई, आज जो मतलब 6 साल की कंप्लीट हो गई है, लेकिन मेरी बेटी जब से पैदा हुई है ना, पहले मेरा खुद का लाइफ जो था ना वो बिल्कुल मतलब डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरी बच्ची जब से मेरी लाइफ में आई है ना, उसको सिखाना है, मेरी बच्ची को कुछ बनाना है, इसलिए मुझे खुद बदलना है। तो इसीलिए ना जब से मेरी बेटी मेरी लाइफ में आई है, बहुत लाइफ चेंज हो गया है। उसके साथ साथ बिल्कुल वो जब खेलने जाएगी, खाएगी, या बिल्कुल डिसिप्लिन में हो गए। और आपने अभी जो कहा कि खुद के अंदर झांको, आप अगर मतलब खुद को ढूंढोगे तो मतलब सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो मेरे हस्बैंड हमारे मतलब किसी कारणवश, तो फिर मैं मेरी बेटी के साथ रहती हूँ। वो आते हैं लेकिन 1 या 2 महीने हमारे साथ रहते हैं, लेकिन पूरा टाइम हम दोनों साथ रहते। तो हमारा लाइफ शेड्यूल, उसके कारण मेरा लाइफ शेड्यूल इतना चेंज हो गया है कि मतलब मुझे उसने जीना सिखाया है करके। स्कूल का जो टाइम, मतलब कभी उसकी मेरे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन में। आज तक बच्चों की मैंने जहाँ जाती हूँ वहाँ देखती हूँ कि बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट होती है, मेरा बच्चा टीवी देखता है, खाना नहीं खा रहा है, रो रहा है बहुत, तो ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है सर। कोई बात नहीं, तो आपने एक ही चीज दिया उनको, क्या? प्यार, बहुत ज्यादा प्यार। गिव अ बिग क्लैप। तो आप जी रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, और सर मैंने आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे आपके साथ जुड़ना भी है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहले तो मेरा नाम पोपट पानसरे है। मैं अभी मेरे फैमिली के साथ आया हूँ इधर। मेरी फैमिली दूसरी जगह बैठी है, मैं लेट हो गया था, फिर भी इधर बैठा हूँ। अभी इधर आने में आप क्या था, हम सारे लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हम खुद को, बच्चों को, परिवार को टाइम नहीं देते। अभी मैं भी मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ, मैं भी पैसों के लिए भाग रहा हूँ, लेकिन इधर आने के बाद आपने जो बताया ना, ये बच्चे होते हैं, सिखाने के लिए होते हैं हमको। बच्चे प्यार बांटते हैं, हम प्यार हमारे नज़दीक नहीं देखते, हम इधर उधर प्यार ढूंढते हैं, तभी मिलता नहीं। अभी क्या होता, आपने जो जितने कम से कम टाइम में जो जितना बताया है बहुत अच्छा है, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा। और मैं 1 साल के ज्वाइन कर रहा हूँ आपके लिए सर, यही आज बोल रहा हूँ। और फिर से मैं संजोत मैडम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सभी लोग थैंक यू बोलो, आप नहीं, सभी लोग। मैडम हमेशा कुछ नया नया कर सोचती है, वो खुद भी डेवलप होती है और पेरेंट्स को भी डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स भी देते, इसलिए मैं मैडम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी की ओर से। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा। यस सर, आई एम टीचिंग इन स्ट्रॉबेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड यू सेड कि शाउटिंग नहीं करनी है हमें बच्चों पे। Actually, in the morning only I shouted on my child a lot. No problem, माफ करो बस। And after that I felt so sorry कि नहीं मैंने बुरा किया, तो I got the way to say him कि it's sorry, how to say sorry. So I will not say sorry now. These words I will use. No, पहले आप अपने आप को माफ करो, अपने आप से प्रेम करो, और फिर प्रेम से उसको 4 वाक्य बोला, बस। गलतियां होती रहती है लाइफ लॉन्ग। अपने आप को रोज रात को समय सोने से पहले ये मेडिटेशन सुनो, क्लियर करो। दूसरे दिन वापस कोई बात नहीं, रात को क्लियर करो, ये खाली करके सो जाओ। Surely sir, I will do that. Okay. Thank you sir. Thank you so much. My name is Mallar Vinayak Paisare. Sir, thank you. थैंक यू डियर। बच्चों को समझ आ गया है, मम्मी से अभी प्रेम मिलने वाला, बस। जय गुरुदेव। सबसे पहले हमारा जो यशस्वी परिवार है संगमनेर का रहने वाला, तो उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल से हम आपसे जुड़े हुए हैं, रोज़ झूप पर मिलते हैं और आपके कल्चर में आ गए तो सब लाइफ मतलब हैप्पीली जीते हैं, घर में भी माहौल अच्छा है। और संजोत मैडम का धन्यवाद कि संजोत मैडम यहाँ पर आई है। तो ये यशस्वी कल्चर में आने के बाद क्या होता है ये गुरुजी को सामने देख के पता चलता है। यहाँ मैं फेस 1 टीचर हूँ यशस्वी की, और मैं सबको बताना चाहती हूँ 10 तारीख को मैं बताता हूँ। यशस्वी सिद्ध समाधि योगा, ये हमारा मदर ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, मतलब हमारा बीज कहाँ से आया है, सिद्ध समाधि योग।
यस ये आप लोग खुश नसीब है कि औरंगाबाद में कोर्स हो रहा है, वो भी मुझे आज भी मालूम पड़ा कि 3 दिन के बाद हो रहा है, 10 तारीख को हो रहा है, लाइव हो रहा है। नॉर्मली हम ऑनलाइन करते हैं लेकिन ये तो लाइव हो रहा है। यस हमारे बहुत बुजुर्ग जो टीचर है दे विल बी कंडक्टिंग इट, तो आगे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। मेरा सजेशन है कि सभी लोग SSY करना चाहिए। वही मेरे अंदर में जो बीज था समाधि, सिद्ध समाधि, समाधि मीन जब बुद्धि समत्व हो गया उसका मतलब समाधि। तो वो जरूर कीजिए, 10 तारीख को आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको लाइफ में मतलब बहुत बदलाव आ गया। पूरी सुख हो दुख हो सब पूरा एक्सेप्ट करना है और एंजॉय करना है। धन्यवाद, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। ओके, लास्ट 1 or 2 people and then we'll have जोतमा बताएंगे। मेरा नाम गुंजाल नीलेश है सर। मैं अभी कम से कम 2000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, बहुत ट्रेस में आया था। हम पिछले 2 महीने से हम बच्चे को स्कूल में नहीं भेजा है क्योंकि वो मेरे साथ दिल्ली में था और हम इतनी जर्नी करके आए, लेकिन आपका लेक्चर सुनने के बाद बहुत ट्रेस फ्री हो गए हम। तो थैंक यू सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने इतने अच्छे से और इतने सिंपल वे से सारी बातें समझाई है। पहले वो जो पोएम थी वहाँ से उन्होंने शुरुआत की कि एक बीज है, इसको बाहर निकलना है, उसको पेड़ बनना है। तो अगर हम उसको खुले आसमान दिखाना चाहते हैं, सब अपनी जो पोटेंशियल है उस हिसाब से उसको अगर फ्लरिश करना चाहते हैं तो उसको फ्रीडम दो। ये पहले उन्होंने बोला, वो बाकियों को छाव देना चाहता है, वो खुद का पोटेंशियल डेवलप करेगा और दूसरों को राह दिखाएगा, दूसरों को छाव देगा। पहले तो हमारे बच्चे जो हमारे लाइफ में आए हैं वो हमें जीना सिखाने के लिए आए हैं। हमारे बच्चे हमारे लाइफ में आए हैं, वो हमें हैप्पीनेस देने के लिए आए हैं और जीना सिखाने के लिए आए हैं। और जब सर ने ये डायलॉग बोला, मुझे मेरा जो पास्ट है वो याद आ गया। बिफोर कोविड मैं मेरी बेटी की मम्मी थी और वो मैं मम्मी की तरह उसके साथ थी और हम दोनों में काफ़ी दूरियां थी क्योंकि आई वॉज अ मदर एंड शी वॉज अ डॉटर। तो मैं हमेशा वही ऑरा में रहती थी कि नहीं मैं मम्मी हूँ और मैंने उसको डिसिप्लिन में लाना है, मैंने उसके ऐसी बात करनी, मैंने उससे वैसी बात करनी है। थैंक्स टू कोविड वो जो 2 साल हमें मिले एक दूसरे के साथ में, तब मेरी बेटी मुझे बोलती थी, मम्मी ज़्यादा टेंशन मत ले, चिल एंजॉय कर लाइफ में, कुछ नहीं होता रहता है, ये आज होगा कल नहीं होगा, लाइकवाइज। और उसके बाद मैं धीरे धीरे जो बदल गई, नाउ वी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। जो मेरा मम्मी और डॉटर का जो नाता था वो एकदम टूट गया या तो डिज़ॉल्व हो गया और अब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। और उसके बाद जो उसमें चेंज आया, एक्चुअली पहले मैं उसमें चेंज लाना चाहती थी और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, जैसी तू है आई एक्सेप्टेड हर। और उसके बाद वो शी हैज़ चेंज अ लॉट उसमें, और मेरे जो रिलेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं थैंक्स टू मनोज सर की, जो आपने मुझे रियलाइज़ करवाया या आपने सबको याद दिलाया कि हम उनके अगर फ्रेंड बनते हैं, अगर हम उनको डिसिप्लिन में लाएंगे तो वो कभी डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम उनको प्रॉपर कुछ चीज़ें बताएंगे तो ज़रूर वो, अगर उनको हम इनडिसिप्लिन रहने देंगे तो वो ज़रूर खुद में चेंज लाते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल थी। और जो आँखें हैं, हमने सच में वो आँखें बंद करके रखी है और वो आँखें अगर हम उनको खोलने दें या खुद की आँखें खोले, पहले तो दूसरों से पहले तो खुद पे काम करना है कि अगर मैं मेरी आँखें खोल दूँ तो ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स में मेरा क्या स्थान है, वाई आई एम हियर। हमें ऐसे लगता है कि हम बच्चों को तैयार करने के लिए, हम दूसरों पे काम करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम हमारा पर्पज़ ही भूल गए हैं। व्हाट इज़ द माई पर्पज़ ऑफ लाइफ, हम वो ही भूल गए हैं। सो आज सर ने जो याद दिलाया कि हमें खुद पे काम करना है, यू ब्रिंग अ पर्पज़, आपने एक पर्पज़ लेके ही आपने जन्म लिया है और शायद वो पर्पज़ हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं कर रहे क्योंकि हम
बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने इंटेंगल हो गए हैं कि हमें खुद को देखने के लिए ही टाइम नहीं है। ये ब्लेमिंग गेम्स कंटिन्यूसली अंदर चल रहा है, ये फियर कंटिन्यूसली अंदर चल रहा है, ये शेम कंटिन्यूसली अंदर चल रहा है। मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, मेरे से ये गलत हुआ, मेरे से वो गलत हो गया। लेकिन जब सर ने बोला है कि एक्सेप्ट इट, इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग डजंट मैटर, एक्सेप्ट इट। आप वो जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। एक्सेप्ट इट, ये कहीं ना कहीं से तो आया है। आपके अंदर जो डर आया है, आपके अंदर जो शेम आया, आपके अंदर जो गिल्ट आया, वो कहीं ना कहीं से तो भी आया है। येस, आई एम एक्सेप्टिंग इट एंड आई एम गिविंग इट बैक टू दैट सोर्स। वो कहाँ से आया, मैं उसको लौटा रही हूँ। ये मैंने दोपहर में भी किया। दोपहर में भी मेरे दिल में कुछ है, वो आपसे प्यार चाहते हैं और हम उनको प्यार छोड़ के सब कुछ दे देंगे। जब ये हमारा ही गुस्सा है तो बस मुझे स्वीकार करके यूनिवर्स को लौटाना है, किसी न किसी फॉर्म में लौटाना है। ये पेड़ों को लौटाओ, सूरज को लौटाओ। सर ने दोपहर में बहुत अच्छे से बताया कि कैसे लौटाना है। मैं ये सब लौटा के खाली हो गई हूँ। अब मुझ में क्या बचता है? मेरी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है वो प्यार की है, मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है शांति की है। बस उतना ही बचा भी मेरे पास जो कि मैं सबको दे सकती हूँ। हमने खुद को इतने खराब चीज़ों से भर दिया है कि हम खुद की आइडेंटिटी भूल गए कि व्हाई आई एम हियर। मैं यहाँ पे दुनिया को प्यार देने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे खुद की पहचान ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम खुद को पहचाने। हमारे बच्चे भी हमसे प्यार लेने के लिए आए हैं, ये हमारे प्यार की निशानी है, हम बोलते हैं। और वो प्यार चाहते हैं। हम कितनी बार उनको प्यार करते हैं, कितनी बार हम उनको गले लगाते हैं। वी डोंट गिव देम लव टू देम। मुझे बहुत आज रियलाइज़ हो गया कि जो प्यार से हो सकता है वो डांट और फटकार से नहीं हो सकता है। कितने लोग एग्री होंगे? हमने बहुत करके देख लिया, डांट के फटकार के कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन वही चीज़ आप अगर प्यार से करोगे तो सब अपने आप हो जाएगा। और सर ने बताया कि आप मुझे सजेशन दो कि तुझे क्या लगता है मैं किस तरह से तुझे समझाऊँ। एंड दे आर वेरी स्मार्ट। उनको लगता है कि मेरी मम्मी प्यार करती है, बस उसका वो कहने का तरीका गलत है, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स। तो अभी वो हमारी फीलिंग्स समझेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर दिया इन्होंने हमें। एंड थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सिद्धि, इवन माई डॉटर। थैंक यू सो मच स्वामी। स्वामी तो बहुत शांत है, लेकिन सिद्धि और मेरी बेटी मम्मा चिल कर तो ये उसका बहुत फेवरेट डायलॉग है। और सर ने जब बताया कि उनकी डॉटर भी सिंगर है तो बहुत कनेक्ट हो पाई, क्योंकि सिद्धि भी शी इज़ ऑल्सो सिंगर। और सर की डॉटर ने बहुत अच्छे से ये कोरियोग्राफी नहीं, उनका म्यूज़िक दिया है, उसने वीडियोस बनाए हैं। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसका जो ओरिजिनल पोटेंशियल था, सर ने क्या किया, उसको फ्रीडम दे दिया। तू मेरा सपना पूरा करने के लिए नहीं आई है, तू तेरा सपना पूरा करने के लिए दुनिया में आई है। ये सोच के जो सर ने उसके साथ जिस तरह से रिलेशन डेवलप किया है, उस वजह से उसने खुद का पोटेंशियल जान लिया और वो अभी अपनी करियर में एकदम टॉप मोस्ट प्लेस पे पहुंच गई है। ये हमने करना है। हम कभी जानने की कोशिश तक नहीं करते कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, हम उस पर थोप देते हैं कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो बच्चों की कैपेसिटी नहीं है आईआईटी में जाने की, फिर भी उनको क्लास पे भेज के रखा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, पहले अपने बच्चे को जानिए और बच्चे को जानने से पहले खुद को जानिए। अगर हम खुद को जान लेंगे ना तो एम्पैथी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। वी कैन पुट आवर शूज़ इनटू देयर वी कैन पुट आवर लेग्स इनटू देयर शूज़। हम जान पाएंगे मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिफ्लेक्शन है, आपकी रिप्लिका है। सो खुद को जानिए, बच्चे को अपने आप जान लोगे। सो थैंक यू सो मच सर, जो भी आपने दिया है। यस, थैंक यू दीपेश सर। और एक हमारा स्टूडेंट है जिसका फेलिसिटेशन रह गया था और उसके पहले मनोज जी का फेलिसिटेशन रह गया है। सर आई वुड लाइक टू कॉल नीलम, क्योंकि से लास्ट में कीजिए। इज़ दैट वर्थ कमिंग हियर? कितने लोगों को लगता है कि हम आए, अच्छा किया यहाँ पे? ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये तो ग्लिम्सेस है छोटी छोटी, क्योंकि आज टाइम बहुत कम था। बट अगर आप ये SSY परिवार से जुड़ जाएंगे,
मैं भी रिसेंटली मैंने लिव लाइफ किंग साइज का प्रोग्राम उनका ज्वाइन किया है और उसमें जो मुझे वैल्यूज़ मिले हैं वो इतनी ज़्यादा है और प्रैक्टिकली सिखाते हैं, कोई लेक्चर नहीं है, ऑन कोट आपको एक्शन लेनी है। मेहुल शाह सर यहाँ पे आए हुए हैं, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, सूरत से आए हैं वो, और वो इतना बारकाई से सिखाते सब चीज़ें, एक एक चीज़ करवा के लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वीडियो ऑन रखना पड़ता है, सो वीडियो ऑन रखना है तो हम नींद नहीं ले सकते, हमें ऑन टोज ही रहना पड़ता है। बट बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल बेस ये प्रोग्राम है, मैं ऑल पेरेंट्स को बताना चाहूँगी। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जैसे नीलम बच्चों का SSY कोर्स करवाती है, हाँ, स्टूडेंट SSY उनका रहता है। मैंने जो देखा है ना सीनियर KG के, नीलम इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ नर्सरी ब्रांच, सो जो नर्सरी के 3 ब्रांचेस है उसमें उसने जो सीनियर KG के बच्चों के साथ बात की और उनको कुछ डिसिप्लिन में लाया है। कितने पेरेंट्स हैं यहाँ सीनियर KG के जिनके बच्चों का मोबाइल देखना बंद हो गया है? एग्रीड डॉक्टर होर्न? और हो गया है क्योंकि वो इतना अच्छे से समझाती है। और मैंने नीलम को बोला है भाई तू बस सीनियर KG तक मत रुक, वहाँ पे आ जा, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है 1st to 12th के लिए वहाँ पे तू तेरा करिश्मा दिखा। तो उसने बोला कि मैम सबको बोलो आप स्टूडेंट की जो SSY है ना इसमें एनरोल करो, सो इफ़ यू विश यू कैन एनरोल योर चाइल्ड फॉर दैट प्रोग्राम ऑल्सो। बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर प्रोग्राम उनका रहता है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मनोज जी, थैंक यू ऑल द पेरेंट्स। बस हम उनका फेलिसिटेशन करेंगे एंड देन वील लीव द प्रोग्राम। हेलो, थैंक यू मैम। एक्चुअली आई एम रियली SSY मेंबर, मैं SSY कर चुकी हूँ, मेरी पूरी फैमिली, माय होल फैमिली इज़ इन SSY। और मनोज जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, ऑनलाइन बहुत कोर्सेज किए मैंने उनके, और लास्ट ईयर जब TTC में मैं उनसे मिली तो आई वॉज रियली ब्लेस्ड। और जब मैम ने बोला कि मनोज जी इज़ कमिंग तो जस्ट ऐसे एज अ ड्रीम, इट वॉज ड्रीम फॉर मी, बहुत अच्छा लगा। और उनका सच में आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही फ्रूटफुल था, है ना? फ्रूटफुल, यस। तो हम सब फॉलो करेंगे, हमारे बच्चे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन हमें कैसा रहना चाहिए ये बहुत बड़ी सीख आज हमें मनोज जी ने दी है। सो आई रियली थैंक यू। और उनके साथ संजोत मैम को भी, क्योंकि वो हमेशा स्कूल के लिए कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया चाहते हैं और हमेशा बच्चों के लिए सोचते हैं। तो ये जो उनका बीइंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनके वजह से ही आज हमें ये जो प्रोग्राम है वो सुनने को मिला। सो थैंक यू फॉर दैट। और रहा चिल्ड्रन बैच का, जो मैम ने बोला है कि चिल्ड्रन SSY जो कोर्स है वो 7 years to 12 years तक के बच्चों के लिए है, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसमें पूरा जो भी सिलेबस है वो गुरुजी से मिला हुआ है, ऋषि प्रभाकर जी से, और बच्चों में काफ़ी चेंजेस हमें दिखते हैं उसके वजह से। Now I will call all the dignitaries on stage, Mr. Digay sir, Gongte sir, Ajit sir, Yogesh Baheti sir, Anita ma'am, आइए सब। Hello. I will also like to call all our team. Please come. They are all our trainers. जो हमारा 50 का टीम है उसमें से 15 लोग आए हैं इधर, तो हम लोग सब साथ में ये मेंबरशिप शुरू किया है, कायम रखते हैं। तो कभी भी कोई भी प्रश्न है इनके साथ बात कर सकते हैं। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। विनय जी, क्लेयर जी, बीजल जी, मेहुल जी, संजत जी, चिराग जी, जूली जी, दीपेश जी, and many more other G's, Ajay ji, Subhaya ji, and so many. So thank you so much for being here. And Swati, of course. Okay, Swati जो छुपा करती है. So थैंक यू। ये उनके कारण जो है हम लोग ये सब बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? खुशियाँ।